Happy birthday. हाँ गाओ गाओ पूरा बतकर. Come on everyone. Happy birthday. Woohoo! Super cool. And well, I have to ask one question before I get out of this place. Your one core memory when you were doing this track. Okay. First of all, hi, how are you? यार बहुत ठंडा हाय था. How are you guys? यार म्यूजिक लॉन्च पे आए हो, थोड़ा मस्ती होनी चाहिए, धमाका होना चाहिए, फील आना चाहिए, और स्पेशली वी आर गोना सिंग द होली सॉन्ग, सो मस्ती होनी चाहिए. Core memory for this song, I think this is my second song I've dubbed from home after delivering my baby. Yay, so I'm a new mom. तो मतलब ऐसे इस गाने की तो कोर मेमोरी यही होगी कि मैं गाना गाती थी और फिर बीच में स्टॉप करके बेबी के पास जाती थी, उसे चुप कर आती थी और फिर वापस इधर आती थी रूम स्टूडियो में गाना डब करने. सो दैट इज़ वन कोर मेमोरी एंड आई हैड फन एंड माई बेबी नोज द सॉन्ग अभी से ही, एंड it's gonna be fun to watch him sing this song after he grown ups. Perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you. जी, your core memory? मेरा कोर मेमोरी ऐसा था कि इस तरह का गाना मैंने फर्स्ट टाइम गाया. अभी तक मैं स्लो पेसिंग रोमांटिक सॉन्ग से आता आ रहा था, तो ये फन ट्रैक फर्स्ट टाइम मैंने गाया. तो मुझे नहीं पता था कैसा साउंड करेगा, बट अभी गाना रिलीज हो चुका है. कैसा लग रहा है ध्वनि आपको गाना? थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. But I think आप दोनों को यहाँ आना चाहिए हमारे साथ. To groove on this song. Come on, give it up for Dhvani and Aashim. इधर साथ में रंग उड़ाएंगे ना. हाँ. Are you guys ready? कुमार बाजी. Give it up for कुमार बाजी. चढ़ गई मुझको भांग की गोली, होश गवा बैठी हूँ सारा. लड़की मैं भोली भाली, कौन करे मेरी रखवाली, आँख सभी की है आवारा. मुझको दे एक मौका, मैं तो ना दूंगा धोखा, मेरे तो नेक इरादे हैं सीधे साधे. कृष्णा संग रंग उड़ाए, राधे राधे राधे, डीजे पे नाचे गाए, राधे राधे राधे. कृष्णा संग रंग उड़ाए, राधे राधे राधे, डीजे पे नाचे गाए, राधे राधे राधे. चढ़ गई मुझको भांग की गोली, होली अपनी ट्रेंड करेगी, राधे राधे, खुशी का मौसम सेंड करेगी, राधे राधे राधे. होली So this is the gist of the song, and Kumar Paji has written the song. Give it up for Kumar Paji, please. Thank you, Paji. मजा आ रहा है? So this is just one song, guys. आगे आगे देखो होता है क्या. Amazing, Asees. Thank you so much. माहौल बना दिया. Thank you so much. Thank you, guys. जोरदार तालियां तभी हम जाएंगे. Thank you. Okay, thank you. Next track is Dhvani's track. It's called Sehra. Dhvani and Varun, both of them together. Thank you. Hi. So Sehra is a very special track again because Sachin Jigar and I really have a lot of love for them and they've given us this track. And Varun has sung it. I think we both have a lot of love for Sachin Jigar. And मेरी एक actually बहुत special memory है जब वो
गिटार पे बजा रहे थे गाना. I think Laxman sir was also there, Saurabh was also there, Papa was also there. And मेरी एक जोर से चीख निकली. I was like, ये क्या गाना है? This is insane. And I was like, this has to be on our album. And then they agreed because, I mean, it was such a beautiful song and still is. And it's touching so many hearts. And then Varun agreed to sing it. And it just comes at such a beautiful moment in our film. And थोड़ा montage में आता है. वो बड़ा प्यारा गाना है. आप सुनिएगा ज़रूर. के भी नहीं अब तो है सारी उम्र एक ही प्याले फिल्म में देखो ना और स्पॉटिफाई पे भी सुनना. हमारे स्ट्रीम्स बढ़ जाएंगे. बहुत ज़रूरी भी है. ज़रूरी है Streams बढ़ने गाइस, चाहिए. कम ऑन. एंड मैं बस ये कहना चाहती थी कि ये गाना इतना ब्यूटीफुल नहीं होता अगर इसमें वरुण ने भी नहीं गाया होता Thank और you so आशिम much, भी thank you. नहीं होते. और आई जस्ट फील लाइक it's the soul of our film, no sir? Saurabh sir and Laxman sir. And I love this song and I hope you guys give it love even in our film. It's out on the 20th of September. अब मैं बहुत बोल लिया, मैं जा रही हूँ. Dhvani नहीं जा सकते. Dhvani has to be on stage because the next track is yours only. Ishq De Shot. IP Singh, Akshay Raheja, Dhvani Bhanushali, music by Akshay, IP lyrics by IP Singh. Please come on stage. How are you guys doing? Make some noise! देखिए जब मैं बात करता हूँ तो ज्यादा सेंस नहीं बनती है तो गाने पे जंप इन करते हैं फटाफट. नहीं, अब तो बिल्कुल सुनना. जैसे ही बोल दिया यहीं पे तो मजा आने वाला है. तो फिर अक्षय बात करेगा. अच्छा एक काम करते हैं, चूज. अक्षय. You. Okay, come guys in the Come now, share your any special memory, co-memory you want to share with all your जनता out here जिनको सुन के अच्छा लगे. कुछ भी, whatever you feel like. यार हमें तो बस बहुत 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 ज़्यादा मज़े आए. वर्किंग विद ध्वनि, वर्किंग विद विनोद सर, इट वाज लाइक वर्किंग विद फैमिली. वी वर मेड टू फील सो कंफर्टेबल एंड एक गाने से बात शुरू हुई और फिर हमने 3 गाने कर दिए पिक्चर में. तो अरे चक दे फट्टे. क्या हो जाए.
Okay, so we can hear it. Ishq this shot कर ले. Go on. Shot it. Shoot it. खिंच के आज नचना फ्लो. Amazing! What a bomb of a track is this one. What a joy. Even on my radio channel when we were playing it, we were playing with the loudest. Amazing. Yeah! Like I said, Spotify hit, huh? You know the drill, guys. You know the drill. Spotify सुने और हमारे बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखें वहाँ पे. Yes, please. So noted, guys, noted. चले next track पर. ठीक है, बिल्कुल आपने बोल दिया. Next track is एक लड़की भीगी भागी सी. शाश्वत सिंह. उसमें मेरा कोई काम नहीं है. अक्षय, हम नाचेंगे. हाँ, माहौल बने रहना चाहिए. Give it up for Shashwat! Check. Hey everyone, hi! What energy, man! Congratulations, 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 and amazing, eh? All of you, so good. Thanks, man. Man, Thanks, you man. can really dance. I didn't know. Yeah, all right. Shashwat, you have to say something. Share something. Well, this was my first song with the two of them, and very kind, very easy going in the studio. So I had a great time singing a legendary song like "Ek Ladki Bhigi Bhagi Si." Yes, you know? absolutely. That's Matlab, quite a lot of. Yeah, it's a Yes, responsibility. yes, it So is. and he just took me through it like a breeze, you know. So it was amazing. Cheers to that. Yeah. Absolutely. So चले शुरू करें? Yes, let's go. Okay then, are you guys ready for this? Yeah. We have to sing this chorus together, guys. Okay? We all know this chorus. आता है ना कोरस? आप लोग सब न्यू जैन हो?
चेहरा जितना शर्मीला है, नखरा उतना जहरीला है। चेहरा जितना शर्मीला है, नखरा उतना जहरीला है बड़े भी इशारे, कोई है ना बेचारे, आग की जैसे बरसात है। Okay. I have to say one more thing. One second, let me catch my breath. पानी पानी ला. नहीं इतना नहीं ठीक है. So I'm just like, this is Laxman sir shot this and I don't think he shot this in a day. He shot this in a day. And this is like the best thing that ever happened to me in my whole life. Wow, Lakshman amazing. sir. For that one. I remember asking Lakshman sir, "ये कैसे करेंगे sir?" He's like, "Raje, हो जाएगा. तू हो जाएगा." practice कर. With everything that I've asked him about the film, I don't think anyone, apart from every person who's sitting on this row, because I kept questioning it, but that's just me. And I think each and every one person here just kept telling me the same thing. हो जाएगा. You know? And that was the start of the film. And I can't believe that it's, what? कल मेरा 3-4 birthday था days तो away. मतलब आज 16th है. 4 दिन. This is the best birthday gift that I could ever ask for. Thank you. Thank you, Laxman sir. Thank you, Karishma ma'am. Thank you, Saurabh sir. Vinod sir. I mean, this is. I'm not going to make it boring. I don't want to give a speech, but thank you for instilling this confidence in me, which I didn't have at the time till a very few days, because I kept asking him. I was like, "Sir, गाना है 3 दिन rehearsal के लिए कैसे करेंगे?" And he just kept saying कि तू टेंशन मत ले, तू कर लेगा. And it has come out so stunning. Thank you so much. Thank you Thank so you much. so we love you a lot. Okay, last but definitely not the least, the title track. Kahan Shuru Kahan Khatam. Dhvani. We have to have Vismay. And let me tell you this. So the additional lyrics and everything else was done by Akshay and IP, and I love them for it. They've given it such a beautiful indie vibe. And then that's why we also had to have Vismay on it, who's done a killer vocal. What is up, guys? यार जोर से चिल्ला दो, मुझे लास्ट वाले रो से एक्सपेक्टेशंस हैं. देखा? Thank you so much. So, yeah, happy birthday, Aashim. Thank you so much, brother. And congratulations for the movie. Happy birthday, Aashim! यार ठीक से बर्थडे हम इसके बाद कर लेंगे. आशिम को जाने नहीं हाँ, देंगे. मेरी सक्सेस पार्टी है. सक्सेस पार्टी है. So yeah. हम गाएं? आप Are we सुनेंगे? ready for it? पर आपको गाना पड़ेगा वरना गाना स्टॉप हो जाएगा. Exactly. You तो will know ना these words. अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ चलिए. गा लोगे ना? संभाल लेना, ठीक है? अपने लिए तालियां बजाओ एक बार जोर से. Here we go. हो गए लापता तेरे ख्यालों में मेरा यूं रात दिन आना
अजनबी थे हम कभी मगर जरा भी अपनी क्या करना हमें समझाया अजीब का सकता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें कौन सी समझ सके ना हम अजीब रास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें कौन सी समझ सके ना हम Here we go! तो सीधा सीधा मुझसे तू कह दे कि तेरे दिल में है क्या ऐसे मुझसे तेरी मेरी उल्टी सीधी पहली वो ना बुझा तुझसे दिल की बेटी है सबसे वजह भी होगी मेरे ख्वाबों में तेरा तेरे ख्यालों में मेरा यूं रात दिन आना जाना ये अजनबी थे हम कभी मगर जरा भी अभी है क्या हमें ये Sing along! शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें है कौन सी कहाँ समझ सके ना हम अजीब दास्ता ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें है कौन सी कहाँ समझ सके ना हम Thank you so much guys. बहुत अच्छा गाया आपने. Thank you guys, thank you guys. Thank you for supporting us so much. पर इस बार ट्रैक के बिना, ठीक है? और जो मेन हुक लाइन है वो गाते हैं साथ में, ठीक है? Come on. पूरा हॉल साथ में गाएगा. Guys, everybody needs to sing with us. Come Yeah. on. 3, Okay. 2, 1. अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी ना वो समझ सके ना हम. Thank you so much guys. That was amazing. Thank you. We love you. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. It was a blast. Did you guys have a good time? But we can't hear you. Make it louder. And a round of applause to everyone, please. Here, come on. Thank you. Thank you so much guys. And special shout out to Sunidhi Chauhan, ma'am. उनके बिना yes, कैसे चल please. सकते? Yes, absolutely. We'll just play that song there. Can we? Can we play the The track? song is called Babu Ki Baby, and I think it's just too good. Hear it. Aashim will do the hook step for you. Are we playing the track? Yeah. Okay. मैं बात कर लेती हूँ. इसीलिए तो आप हैं. Okay, अगर मैं आपसे पूछूं कि that one particular moment in the entire movie, जब you guys were very overwhelmed emotionally, like you felt, is this happening? Is this for real? Your, कहते हैं touch wood, pinch yourself moment maybe. It was all 40 days, dude. And today, actually, more than anything else, my dadu is sitting here. And Yay! I think for our whole family, it is such a big day.
and you will probably not get the emotion, but we do. My papa, my dadu, missed my dadi a lot today. She would have been very proud. And we were sitting, I just wanted to share this story. We were sitting on number 9 and number 10. तो जब मैं बड़ी हो रही थी, हमारा पहले घर था फ्लैट नंबर 9 और फ्लैट नंबर 10B. Wow. तो a journey from there, Kahan Shuru, to now, I think it's been very, I've seen all phases of my dad really achieve in life. रोना नहीं है, रोना नहीं है. मैं just आज बहुत खुश हूँ कि आज वो ऐसे सक्षम हैं कि वो मुझे सपोर्ट कर पाते हैं, मेरे सारे सपने पूरे कर पाते हैं, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ. आई थिंक मेरी लाइफ मेरे पेरेंट्स के लिए है. Wow, Dhvani! Such a rock star you already are. Thank you. And यहाँ से तो rock and roll, full power. Your moment. मैं तो बात करने आया था, मुझे रुला दिया है. कोई बात हुई? ये अच्छी याद है. अच्छी यादें हैं, हाँ, बिल्कुल. these are the things जितना cherish करो उतना अच्छा है. Yeah. Give Okay. it to universe. Yeah. So your question was Any moment which was like a touchwood moment, or I'm sure the entire movie is like that, but always पता है कई बार I from the interviews I've taken, there's always one particular moment you're like, is this for real? That this just happened, you know, that surreal feeling, and you're very grateful. यार जहाँ से मैं आया हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ, I think at कहाँ से कहाँ शुरू किया था और इंशाल्लाह कभी खत्म ना हो ये जर्नी. तो I feel it's just taken so much to reach. Yeah, come on guys. बनता है. It's not a sob story. I don't mean to make it like that, but I just feel like it's very important that I mention this. And you know, Saurabh, when I was signing the film, Saurabh, after I signed it, Saurabh came to me and he said, I had sent you a message about 6-7 years back, and that message was somewhere lost. I could not for some reason reply to him or didn't see it. And then he said, sir, मैं ये picture तब भी आपके साथ बनाना चाहता था. और 8 साल बाद he came and he said, it's still the same and I still want to make this film with you. So I feel कहीं ना कहीं I've done something right for him to have that faith in me still, and for him to believe that I could play and be his Krish to his Meera. So that's a very, very... Wow. You know, it's a very big deal for me, because somewhere you kind of, in your day-to-day lives, in the journey that I've been having, I think somewhere you take it, कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो कि आप किस रीज़न से ये काम कर रहे हो और क्यों आए हो अपनी फैमिलीज छोड़ के. बट जब ऐसे लोगों का साथ मिलता है और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, when they have that confidence in you, it feels like you've done something right, you know. And it's just been such a beautiful journey. I won't want to trade it with the world. Yeah. You know. तो memorable moments, I think ऐसा कुछ moment नहीं है. Every now and then I'll touch myself and I'll be like, you know, I'll pinch myself and I'm like, is this really happening? And the one good thing that I feel, one of the many good things, of course, but our preparation was very solid. Our workshops were really good. I think the moment वो काम जो जितना था वो हम कर चुके थे फिल्म से पहले. Super ready. हाँ. All set. And when we came to the set, it was all fun. We were just having fun with it. And one moment I'll tell you with Dhvani. Yes. आपका one of the part of your questions were when Dhvani was driving the car, and this was a chase sequence. Or I was supposed to be nervous, but I didn't have to work hard for it because Dhvani was driving the car. That is so mean. And on top of that, विनोद सर की बेटी है और जिप लगा हुआ था गाड़ी में, पीछे से लोग डंडे लेके आ रहे हैं, बट ये गाड़ी चला रही थी और आई थिंक जिस हिसाब से इसने गाड़ी चलाई है हमारी जर्नी काफी स्मूथ रही है उसके बाद. ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत बिकॉज व्हाट मेरा साइकी ऐसा चल रहा था कि पीछे एक्चुअली लोग डंडे लेके आ रहे हैं, मुझे क्रिश को बचाना है, तो मैं that's why I was driving the way I was. You really did a good job. I saved you, buddy. Wow. Can you see the chemistry here? Can you see it? This is what you're going to watch in this movie. So amazing. Thank you so much, both of you. Thank you. For being like straight from the heart, not hiding your emotions. It's so amazing. It's so amazing.
to just see, you know, people just tell what they feel and, you know, just not try to hide it. So I'm very happy that You know, this is the opportunity to So, say, because yeah, here, यहाँ पे जो first row पे लोग बैठे हैं, from Rishi sir to the whole row actually मेरे लिए इमोशन जाहिर करने का एक पहला समय है कि कितनी थैंकफुल हूँ मैं फ्रॉम लक्ष्मण सर टू करिश्मा मैम टू सौरभ मुझे नहीं लगता मेरी पहली पिक्चर ऐसी हो भी पाती अगर आप नहीं होते और शायद होती भी नहीं तो थैंक यू सो मच आपने बहुत मेरा साथ दिया लाइक माई पेरेंट्स वुड एंड बहुत मेरा ख्याल रखा लाइक अ बिग ब्रदर मैन आई लव यू अ लॉट थैंक cheers यू to that. Okay, so shall we do the track? Yes, please. Are we ready? Let's bring the fun back. मजा आ गया. मैं इस गाने में नहीं हूँ धनश्री हैं बट मुझे बड़ा मज़ा आता है ये गाना सुन के और इट्स गॉट सो मच वाइब एंड थैंक यू सनी एंड सुनिधि मैम फॉर डूइंग दिस फॉर अस एंड आशीष पंडित सर Amazing. Thank you so much. Now इस हाई नोट से अगले हाई नोट पे चलने वाले हैं क्योंकि सन्नाटा कीजिए ट्रेलर 2 आने वाला है. Yes, like let's right go. now. Like right now. Are you ready for trailer 2? Okay then. फिर अंधेरा करेंगे फिर 3 2 1 करेंगे. डन है? नहीं ऐसे होएगा ही नहीं ना. 3 2 1 तो मेरे को करना पड़ता है भाई.
is taken. Thank you. I would like to request all the singers and lyricists to please take your seats. Thank you so much. Okay. Check. Check. Hello. Vinod sir, on stage. Laxman sir, please on stage. Karishma ma'am. Where is Saurabh sir? Please come. Please come on stage. Dhvani, Aashim. Please make some noise. Okay. Media, the house is open to media. You can ask your question. आप लोगों के जहन में दिमाग में इस समय जो भी सवाल आ रहा हो, please. Anyone question? Okay, you can start. Mic चाहिए. हेलो, दिस साइड सर. हियर. मेरा सवाल लक्ष्मण सर से है. सर इधर. जी सर. मेरा सवाल लक्ष्मण सर आपसे है. मैं लगभग विनोद सर को पिछले 20 सालों से जानता हूँ. उनकी डॉटर की डेब्यू फिल्म है. बहुत प्रेशर होगा कांधों पर. तो ये जो फिल्म की कहानी है, इसकी प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली और कितना प्रेशर था? और सबसे बड़ी बात, जो म्यूजिक है सुपर आउटस्टैंडिंग है, होना ही था. सर प्रेरणा वगैरह कुछ नहीं मिली. फिल्म बनाते हैं सर, कहाँ से प्रेरणा आती है? अच्छी फिल्म बनाओ, पैसे कमाओ, निकल जाओ. कौन प्रेरणा देता है? बट सर एक बात बताता हूँ मैं आपको, कहाँ शुरू कहाँ खत्म से रिलेटेड. 25 साल पहले गोरेगांव में सहारा इंडिया नेटवर्क हुआ करता था, आपको पता होगा. वहाँ पे मैं कैमरा अटेंडेंट था. मेरी सैलरी थी 1500 रुपया. और मेरा भाई विनोद भानुशाली वहाँ पे मार्केटिंग में इंटर्न था. उनकी सैलरी थी 1200 रुपया. बता दो ना. मेरा जैसे ये कैमरा अटेंडेंट था, तो मेरे को ना एक बहुत ही फैंसी ये दिया गया था, AJW3. जब पता चला तो वो पियून के एक लेवल ऊपर था, असिस्टेंट जूनियर वर्कर 3. तो ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई है, जहाँ पे हम सहारा के बाहर एक वड़ा पाव की गाड़ी थी, वहाँ पे वड़ा पाव खाते थे. उसके बाद भाई का रास्ता अलग हो गया, मेरा रास्ता अलग हो गया. मैं कैमरा अटेंडेंट से कैमरामैन बन गया, DOP बन गया, डायरेक्टर बन गया, फिर प्रोड्यूसर बन गया. भाई भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए. सौरभ के साथ जब ये फिल्म हमने लिखी थी, ऋषि विरमानी सर ने ये फिल्म लिखी है, सौरभ ने डायरेक्ट की है. और ये फिल्म की स्क्रिप्ट जब खत्म हुई थी, तो मैं भाई के पास गया था और मैंने कहा था मुझे ये फिल्म धोनी के साथ करनी है. इन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया था. तो कहीं से कुछ प्रेरणा नहीं थी, कुछ नहीं. सिंपल था कि धोनी के जो म्यूजिक वीडियो देखे थे, मैंने उसको देखा था. उसका इनोसेंस मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था हमेशा, कि इस कैरेक्टर को, छोटी सी बात है कि पापा ने शादी करने से पहले मुझे पूछा क्यों नहीं. उसके लिए इनोसेंस चाहिए था आंखों में, और वो धोनी की आंखों में था. तो इस तरह से सर हम जुड़े. और एक 25 साल पहले हम क्या करते थे और आज क्या कर रहे हैं, कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ अभी खत्म नहीं होने जा रहा है. बट थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स. सीरियसली थैंक यू.
हमने एक आदमी को हमारा एडी है उसको उहू करने के पैसे दिए, वो जब से शुरू हुआ है उहू किए जा रहा है। हाँ हेलो, इकबाल फ्रॉम ग्लैम शैम, आपके बाएं साइड में। बाया मतलब लेफ्ट। मेरा सवाल सौरभ से है। फिल्म का जो हमने ट्रेलर देखा है, एकदम कंप्लीट बॉलीवुड मसाला फिल्म हमको देखने में महसूस अभी हो रहा है, अच्छा लग रहा है। इसका टाइटल कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म और फिल्म की कहानी दोनों एक दूसरे को किस तरह से रिलेट कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं? सर वो तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा वो समझने के लिए, बट सर ये जब आया था पहले हमने शुरू की थी लिखना, इट वाज थॉट कि एक रोम कॉम है, बट वो कहीं भी हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया जहां आपको ऐसा लगे कि इट्स अ रोम कॉम, इट्स फुल आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म जिसमें एक्सीडेंटली दो लोग मिल जाते हैं। तो वो जब ऐसे भी कहते हैं कि कहाँ शुरू और कहाँ ख़त्म होने वाला है, उसके थॉट से आया था, और आई थिंक वो लक्ष्मण सर से ही आया था। हम लोग तो बहुत बिजी थे वो सब करने में, पूरा प्रोसेस वो करने में, एंड वी कुडंट हैव गॉट अ बेटर टाइटल देन दिस। नहीं, आई मस्ट से आपने सही सवाल पूछा सर, सौरभ ने भी सही जवाब दिया। जैसे आपने ट्रेलर में देखा, एक लड़का गेट क्रैशर है, वो एक शादी का गेट क्रैश करता है, वहाँ पे एक लड़की को मिलता है, और फिर कहाँ से शुरू होता है और वो चीज़ ख़त्म कहाँ पे होती है। और ये जो टाइटल जो है कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, वो हमारे राहुल नंदा सर है, ये उनके वहाँ से आया टाइटल है, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइटल है। सो थैंक्स टू हिम फॉर दिस टाइटल। यस, थैंक यू राहुल। थैंक यू। एक सवाल और है विनोद भानुशाली से। इंडस्ट्री में हमेशा बातें होती हैं नेपोटिज्म को लेकर, क्या वो टैग लेने के लिए आप तैयार हैं? सर मैंने अभी कहा वो नहीं आए, मैं गया था। फिर भी वही सवाल तो नहीं चाहिए था, तभी तो पहले ही क्लियर किया था। विनोद जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। आपने शुरुआत कैसी की वो अभी लक्ष्मण जी ने बताया, लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके आप एक्सपर्ट नहीं हो चुके हैं अब तक। तो ये फिल्म भी लग रही है, मैं नेपोटिज्म नहीं बोलूँगी क्योंकि जो हमने इसका परफॉर्मेंस देखा, और ध्वनि को तो हमने एकदम और छोटी थी, बच्ची थी तब से देखा हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ये नेपोटिज्म इस बात पे लागू होता है। लेकिन ध्वनि को लॉन्च करने में इतनी देर क्यों हुई, और इस फिल्म को रिलीज़ करने की क्या स्ट्रेटेजी है? कितने थिएटर्स में आप मैं देर से मिला था। लक्ष्मण आया नहीं ना। जब वो आया मेरे पास में, उसने बोला कि एक्चुअली ना इससे पहले एक डायरेक्टर आया था, मैं सिर्फ अभी उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने बताया था तब हम लोग रेडी नहीं थे, ना मैं रेडी था ना ध्वनि रेडी थी। वो म्यूज़िक में जो गाने हैं, वास्ते, ले जा रहे, ये सब बहुत मतलब 7 बिलियन व्यूज़ हैं, एंड शी इज़ द ओनली गर्ल पॉप स्टार जिसके 3 गाने 1 बिलियन के ऊपर है, मतलब 100 करोड़ के ऊपर देख चुके। तो हम लोग उसी में खुश थे, बहुत खुश थे, मतलब यू नो दैट शी इज़ डन वेल फॉर हर सेल्फ, एंड उसमें नेपोटिज्म भी नहीं आता है ना, मतलब गाना है, गा रही है, आवाज़ सुन रहे हैं लोग, और जहाँ शो कर रही है। तो बट जैसे लक्ष्मण ने कहा था, जिस दिन जब उसने बोला मेरे को, क्योंकि आई होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड्स, मतलब हम लोग इतने नीचे स्तर से ऊपर आए हुए दोनों लोग हैं ना कि हम ट्रूथफुल होते हैं एक दूसरे के साथ में, सीधा बात करते हैं, नो फिल्टर। तो जब उसने मेरे को बोला कि लक्ष्मण ने बोला कि यार विनोद देख ये पिक्चर है भाई, एंड मेरे को दिख रही है ध्वनि, मैं एक भी दिन सेट पे नहीं आने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ चेक काटूंगा, बाकी सब पिक्चर तेरे कंधे पे, यू हैव टू डू। सेट पे मैं भी एक दिन नहीं गया, पूरी फिल्म सौरभ ने की है, मैं वो चेक जो बैंक में आ रहा था वो काउंट कर रहा था। लेकिन इसने एक बात बोली मेरे को, लक्ष्मण ने, कि जब तू फिल्म देखेगा ना तो वो फिल्म लक्ष्मण उतेकर की ही लगेगी, जो सौरभ ने इतनी ईमानदारी और शिद्दत से बनाया ना, आई मस्ट बी थैंकफुल फॉर हिम। यस। एंड सीरियसली फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वांट टू टेल यू गाइस कि जिस तरह से आपने लुका छुपी, मिमी, ज़रा हटके ज़रा बचके को प्यार किया था, जिस तरह से आपको पसंद आई थी, ये वही शेड है। आप हंसेंगे, रोएंगे, चुप बैठेंगे, तालियां बजाएंगे, और एक फैमिली फिल्म है जो आप साथ अपने फैमिली के एंजॉय कर पाओगे, वही जॉनर है, वही फ्लेवर है, ये मेरा आपसे वादा है। हेलो, ये वो बोलना, पैसे दिए। Hello everyone, my name is Sejal from Dainik Bhaskar. Yeah, my question is to Dhvani. Hi, Can't see you. Oh, hi.
तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप क्या चाहती हैं ऑडियंस से कि आपकी फिल्म से वो सीख के जाए? सीख के जाएं। मैं चाहती हूँ आप एंटरटेन होके जाएं मोर देन एनीथिंग एल्स। और एक छोटा सा मैसेज है, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि पापा ने मुझसे पूछा नहीं मेरी शादी फिक्स करने से पहले। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। हम लोगों की हम लड़कियों की लाइफ डिज़ाइन कर देते हैं। आई फील लाइक पेरेंट्स हैव दिस हैबिट ऑफ सेइंग कि हाँ तुम बेटा ये करना, उसके बाद तुम शादी कर लेना। तो ये कभी मेरे साथ नहीं हुआ, पर मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी जो मैं जब बड़ी हो रही थी, ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी मेरे अराउंड जिनकी शादी हो जाती थी 20 साल के बाद। तो कभी मुझे वो समझ नहीं आया, पर फिर मैंने पापा से जाके पूछा तो ही सेड यस ये होता है। आई वॉज़ वेरी लकी कि मेरे माँ बाप ने हर वक्त एट एवरी लेवल ऑफ माई लाइफ मुझसे पूछा कि तुमको क्या करियर चाहिए, तुम क्या पढ़ना चाहती हो, तुम शादी करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो। दे ऑलवेज मेड श्योर दैट माई लाइफ इज़ माई डिसीजन एंड नॉट देयर्स। Yeah, that's amazing. तो आई थिंक शायद ये अवेयरनेस क्रिएट होगी, और अगर कुछ लोग ये देख के अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलते हैं तो आई फील लाइक हम जीत जाएंगे। मेरा अगला क्वेश्चन आसिम से होगा। आसिम हियर, आपका ये किरदार बाकी फिल्मों से कितना अलग होगा? आई थिंक इससे पहले जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं और मैंने इस तरीके की कॉमेडी नहीं करी, और ये पहली बार है। इट्स एन आउट एंड आउट सॉर्ट ऑफ कॉमेडिक कैरेक्टर जहाँ पर मुझे क्रिएटिव लिबर्टी दी गई है कि मैं कुछ भी जिस तरीके से मैं इसे निभाना चाहूँ मैं निभाऊँ। और इसका आई विल जस्ट लाइक टू थैंक सौरभ हियर बिकॉज ऑन सेट्स देयर वाज सच अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। इट वाज नेवर लाइक कि यार सौरभ ने बोला कि यार ऐसे ही चाहिए मुझे। हम लोग पूछते थे, साथ में कोलैबोरेट करते थे, और करते करते आई थिंक पूरी फिल्म बन गई और हमें पता भी नहीं चला। तो आई थिंक दैट इन इट सेल्फ इज़ अ बिग डील। एंड और जहाँ से जिस तरीके के कैरेक्टर्स मैंने किए हैं वो थोड़े सीरियस टाइप के थे, तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट ब्रेक फॉर मी ऑल्सो वेयर आई कैन शो अ डिफरेंट शेड ऑफ माई टैलेंट। एंड आई रियली होप कि ये कि जिस तरीके की कॉमेडी करने की कोशिश की है वो एकदम ट्रांसलेट हो स्क्रीन पर और आप लोग को हंसाए, रुलाए और खूब मज़े आए। Congratulations, Dhvani, and the whole team. Shruti Sinha this side from Bollywood Chronicle. Can you tell me where you Your are? left? Yeah. Yes, found you. Yeah. ट्रेलर में हमने देखा कि काफ़ी आपका बोल्ड अवतार देखने को मिला है, लेकिन अगर आपके रियल लाइफ की बात करें तो कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ है जब आपको ऐसा कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ा हो? मैम आई फील अगर सर्कमस्टेंसेस सही हो और अगर आपको अपना फ्री विल दिया जाए तो कभी कोई रिबेल नहीं करेगा। तो आई डोंट थिंक वो बोल्ड था। आई थिंक वो डिसीजन सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए था जो मीरा लेती है पिक्चर में, और शायद अगर मेरे साथ एक्चुअल लाइफ में भी ये हुआ होता तो मैं भी भाग जाती। क्या बात, वंडरफुल। हेलो ध्वनि, आशिम योर सेंटर, राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। ट्रेलर फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, बहुत मज़ा आया, फिल्म देख के भी मज़ा आएगा। ये फिल्म एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, लेकिन ये जो हादसा होता है, घटना होती है, ये रियल लाइफ में भी बहुत जगह होती है। हाँ जी। तो उनके लिए जो भाग जाते हैं शादी से, उनके लिए क्या मैसेज और उनके पेरेंट्स के लिए क्या सांत्वना देंगे आप दोनों का पर्सनल ओपिनियन बताइए। यार फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है, अगर छीन ली जाए तो घुटन होती है ना, बड़ा नेचुरल सा एक इमोशन है। तो आई थिंक फ्रीडम ऑफ चॉइस हर घर में, हर माँ बाप को, हर बच्चों को एक्सरसाइज किसी भी मोमेंट पे अगर ना उसका मौका दिया जाए तो वो एक इट डजंट मेक यू फील, इट्स सफोकेटिंग। तो आई फील लाइक कि जो भी ये देख रहे हैं, जो भी जिसके लिए भी मतलब जितने लोग ये पिक्चर देखें और कहीं ना कहीं अगर उनके साथ ये उनकी कहानी है और कहीं ना कहीं इस कहानी से वो रिलेट करते हैं, तो आई थिंक इट्स वो सेल्फ इन्फ्लेक्शन जो है, इंट्रोस्पेक्शन वो होनी चाहिए हमारी कहानी को देख के। बाकी एंटरटेनिंग तो है, वी मेड इट फॉर पीपल टू जस्ट कम एंड एन्जॉय द फिल्म, विच इज़ वाई द मैसेज इज़ कि एक बार पूछना ज़रूर चाहिए, जाकि आप उसके आपकी मर्ज़ी हो या ना हो, बट आपको एटलीस्ट एक चॉइस होनी बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट पेरेंट्स and your children or anyone should be asking one another, and उसके बाद I think everybody is smart enough to take their own decisions here. ध्वनि आप
सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये था कि रियल में भी ऐसे घटना होते हैं, हाँ जी। ऐसे में आप जो भाग जाते हैं शादी से, उनके लिए क्या मैसेज है और उनके पेरेंट्स के लिए क्या सांत्वना देते हैं आप, पेरेंट्स को भी और जो भाग जाते हैं उनको भी? सर एक्चुअली मेरा आंसर सिमिलर होगा जो मैंने पहले बोला कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने बच्चों के लिए भी। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं बट मेरे डैड मेरे लिए उन्होंने बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया। उन्होंने मुझसे कभी लाइक आई सेड ये नहीं कहा कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। जब भी मैं बड़ी भी हो रही थी तो एक चीज़ होती है ना कि आपका खुद का दिमाग भी चलता है, फिर आप सक्षम हो जाते हो कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ और किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा या किसी को मेरी लाइफ मैप नहीं करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कोई भी कहीं से भी नहीं भागेगा, ना कोई रिवोल्ट होगा। सो आई जस्ट फील अगर पेरेंट्स ये फिल्म देख रहे हैं तो अपनी बच्चियों को सिर्फ पूछ लीजिए ना एक बार कि आप क्या चाहती हो, बस। एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन है, आप किस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, पहले शादी फिर प्यार या पहले प्यार फिर शादी? कुछ भी कर सकते हो मेरे मॉम डैड की तो शादी हुई थी फिर शायद प्यार हुआ था, है ना पापा? हेलो हाय यार मतलब इट विल बी नाइस अगर अरेंज्ड लव मैरिज हो जाए। इट वर्क्स ईदर वे। झूठ बोल रहा है। हेलो हेलो Yeah, Rajiv Vijaykar here. Hi, sir. Hi, congratulations, Vinod ji, and we have been very old friends. And congratulations to all of you. It's looking rocking. The music, especially, is outstanding. Thank you. And I have two questions, one for Dhvani ji and one for Laxman ji. For Dhvani, my question is a little serious. And you have done so many videos so well that what was the difference for you in acting in a film where the emotions are more or less the same, but it's a louder, bigger format? So that is my first question. What was the difference? Sir, huge difference. Huge. I mean, I had, I feel like in my music videos, I just play myself and maybe different sort of emotions heightened. But at the same, but when you talk about a film, it's a different character, it's a different person. So I had to really work with Saurabh on Meera's character and Laxman sir. I think till the 2 days before we went on to start filming, I did all my scenes with him because it's very important that I do justice to what Rishi sir has written, what Laxman sir has written, and what Saurabh needs to project on screen in terms of Meera. So I don't think म्यूज़िक वीडियो में एक्टिंग और पिक्चर में एक्टिंग एक सेम चीज़ है, बहुत दोनों अलग चीज़ है, बहुत अलग और बहुत सीखना पड़ता है। लक्ष्मण जी सर, my question for you is that कहाँ शुरू कहाँ खत्म seems like a perfect title. So the title came first and then the idea of recreating the classic song, or was it the other way around? The title came first and then we thought of recreating the song. Yeah. And I would just like to add that we've been blessed by Lata ji's voice on our title and on the song. I think ये बहुत बड़ी बात है. It's like पता नहीं कैसे हो गया, cosmically हो गया, and हम सब thankful हैं. I am na. See, I'm blessed. Thank you, sir. Thank you for mentioning that. Actually. Hi everyone, Palak this side from Telechakkar. Hi. Saurabh, my question is to you. Kahan Shuru Kahan Khatam marks your debut as a film director. How was your experience? Like, what should I say? It was very good. Like, overall journey कैसी रही आपकी? Overall journey बहुत अच्छी रही. I think there was a time when I used to see Sir's film and just try to take notes कि ये कैसे कर रहे हैं and just learn from him. And I think I'm just ऐसे कर रहा है जैसे मैं सत्यजीत रे हूँ. But yeah, I think I am just blessed to have Sir, Karishma ma'am, Vinod sir, all believing in me, and I couldn't have asked for more. Thank you. Hello guys, hi. This is Komal Vishwakarma from Peeping Moon. Oh, hi. मेरा सवाल लक्ष्मण जी से है. लक्ष्मण जी इस फिल्म में, yeah, hello, hi.
इस फिल्म में हमने काफ़ी सारे एलिमेंट्स देखे, जैसे कॉमेडी है, रोमांस है, ड्रामा है, ऑल्सो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं. इतनी सारी चीज़ों को आपने एक साथ कैसे बैलेंस किया? ऑल्सो आप इसमें एक मैसेज भी दे रहे हैं. सो हाउ डिड यू बैलेंस इट ऑल टुगेदर? मैम, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी सारी फिल्मों में, जैसे लुका छुपी हो, ज़रा हटके हो, मिमी हो, हर एक फिल्म में मेरा फॉर्मूला है कि लोगों को हंसाते हंसाते घर जाते हुए कुछ एक ऐसी चीज़ दे दो जिससे वो सोचते रहेंगे थोड़ी देर, बट उनको हंसाने का प्रॉमिस अपना है. क्योंकि यहाँ किसी को सीख नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को हंसना है. क्योंकि दिन भर बाहर इतनी धूप है, इतना कुछ मजमा चल रहा है, थिएटर में आके एवरीवन वांट्स टू गेट एंटरटेन, उनको मनोरंजन करना है. तो बेसिकली इस फिल्म की प्रायोरिटी थी लोगों का मनोरंजन करना, और उसमें एक हल्का सा मैसेज विच इज़ रियलिटी ऑल्सो. हम शहरों में रहने वाले लोग शायद इस बात को अनुभव नहीं करते. दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले लोग जहाँ पे घूंघट का पता ही नहीं होता, लेकिन 80% ऑफ आवर कंट्री एक्चुअली घूंघट में है औरतें. तो फिल्म में एक डायलॉग है, हंसते हंसते डायलॉग है, कि जहाँ पर एक देश में एक औरत चांद पे झंडा लहराती है, उसी देश में दूसरी तरफ एक औरत को घूंघट हटा के चांद देखने का अधिकार भी नहीं है. तो हंसते हंसते इस तरह की चुलबुली चीजें हम कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर लोगों को ये बहुत पसंद आएगा. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाय ध्वनि, प्रिया मिश्रा हियर फ्रॉम बजूका मीडिया. Hi. बहुत अच्छा ट्रेलर था, ट्रेलर 1, ट्रेलर 2 बहुत अच्छा लगा हमें देख के, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो? आप अपने पिता के जस्ट बाजू में खड़े हो, मुझे जानना है क्या फील कर रहे हो, कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या कुछ उन्होंने सिखाया इस फिल्म के पहले आपको? उन्होंने मुझे लाइफ सिखाई है मैम. आई मीन मेरे मॉम डैड ने मुझे मेरे भगवान है वो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे उन्होंने सब कुछ सिखाया. उन्होंने इतना मुझे अच्छे से बड़ा किया है कि मैं थैंक यू बोलते बोलते आई थिंक बहुत समय निकल जाएगा. पर आई फील आज मेरे दादा भी यहाँ आए हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है. आई होप उनको भी प्राउड फील हो रहा हो कि एटलीस्ट मैंने बहुत मेहनत की, और शायद आपको दिख रही है. आपने कहा आपको ट्रेलर अच्छा लगा, तो एज ए फैमिली आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ. विनोद सर, हाउ डिड यू सपोर्ट हर? एक उन्होंने पहले सिंगिंग किया, अब एक्टिंग कर रही हैं, किस तरह आपने उन्हें सपोर्ट किया? एक्चुअली क्या है ना, नहीं, जब ये पैदा हुई थी ना, तो तब से एक वादा था, एक फादर का वादा होता है अपनी बेटी के लिए कि कुछ भी हो जाए, आई विल मेक श्योर दैट यू गेट ऑल द हैप्पीनेस. जो शायद मैं पैदा हुआ था तब मेरे मॉम और डैड ने मैं वादा किया था. आई थिंक वही ये फैमिली के हिसाब से भी देखा जाए था, एंड दे डिड लॉट फॉर मी. मैं बता रहा हूँ ना, आज जो बेसिक नीड्स जो होती थी ना एजुकेशन की, वो भी नहीं, इट वॉज नॉट पॉसिबल. हम लोग कोई ऐसे कोई बहुत रिच बैकग्राउंड से आते नहीं हैं, बट आई नो वॉट माई मॉम एंड डैड डिड फॉर मी. और मैं एग्जैक्टली वही किया कि मेरी बेटी को अगर कुछ चाहिए और उसको एक जीने के लिए कोई टैलेंट सीखना है या आगे उसको बढ़ाने के लिए कुछ भी चाहिए होगा, आई विल डू माई 100% बेस्ट. एंड बट लेट मी टेल यू, वो शायद मैं इतना ज़्यादा नहीं किया जितना इसने किया है. मतलब इट्स नॉट ईजी टू रीच एट दिस पोजिशन. मतलब चाहे वो गाने हो चाहे फिल्म हो, मतलब ओबीडियंट बेटी एंड एक लवेबल बेटी, या ऑल द क्वालिटीज आई ऑलवेज सी इन द. हम ये सब नहीं करना चाहते थे, सॉरी. या मैं कहीं बह गया. चल. One last question, please. Hello, hi Dhvani. Where? You're. Yes, hi. I'm Pragya from Hotfly. Hi. So you have a monologue in this film. Yes, I do. Please tell us something about the prep that went behind the whole monologue. Don't say the monologue. That's the kind of prep. मैं उसको अभी अपने सपने में भी बोलना शुरू कर दिया है. इतनी बार आई थिंक वो मोनोलॉग किया होगा मैंने, और मुझे क्योंकि डर लग रहा था, इतनी सारी लाइंस मैंने कलेक्टिवली कभी नहीं बोली. तो और एक्चुअली पूरी पिक्चर में बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आई हैव टू कॉन्स्टेंटली बी ऑन माई टोज. हाँ, बिकॉज यार दिखता है ना,
और सर ने मुझे एक बार बोला था कि तुम कुछ भी पहन लो, कैसा भी मेकअप हो, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो बहुत भद्दा लग सकता है। तो बहुत ये सही बात है और इसलिए मेरे दिमाग में वो बात छप गई। एंड मैंने सौरभ के साथ भी बहुत बार वो मोनोलॉग किया, हमारे वर्कशॉप में भी मैंने उसको तोड़ तोड़ के किया। और 1-2 दिन पहले आई थिंक आशिम और मैं हम वो लॉन में वॉक कर रहे थे और ही वॉज टेलिंग मी आई वुड कॉन्स्टेंटली कीप रिहर्सिंग इट विद हिम ऑल्सो, क्योंकि तब तक हम उस मुकाम ऑफ द रिलेशनशिप तक पहुंच गए थे जब आई कुड शेयर कि यार ब्रो, यू नो, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो माई सीनियर। तो no, he is, and I mean it, and I say it with a lot of love, that he's been a beautiful co-star, and I couldn't have asked for a better hero. And I'm मोनोलॉग की जब बात करें तो बहुत मेहनत गई उसमें और आई होप वो ट्रांसलेट हुआ है स्क्रीन पे। सर बताइए ना जरा प्लीज। बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। We look forward to seeing it more now. I mean, we look forward to seeing it more after what you've just said. Yes. So, congratulations. Thank you. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you for making it here. Please watch Kahan Shuru Kahan Khatam, Friday 20th. National Cinema Lovers Day it is. And a big shout out to music label Sare Gama for amazing set of music. Like always, Team Sare Gama. Thank you so much. Have a good day.